here it goes. The name of the topic is evaluation of expression. EVALU, evaluation of expression. Okay. इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि हमारी जो एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम कैलकुलेटर के ऊपर लिखते हैं या कंप्यूटर के ऊपर लिखते हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब हम उसको लिखते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, तो वो कैसे सॉल्व होती है, ये हमारा आज का टाइटल है. ठीक है. An arithmetic expression is made up of, कैसे बनी होती है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन? Made up of operands, A operands, okay, B arithmetic operators, and C parenthesis. And this parenthesis is sometime here, sometime not here, but generally. So for example, now looking at the examples, हमारे पास एग्जाम्पल कौन सी हैं? A plus B और A multiply by B or A multiply by B plus C. Okay, and the last one is A plus B whole power 2. Okay, so these are some kinds of arithmetic expressions. So in these expressions, in expression के अंदर them ones are your operands, and plus multiply again, multiply comma plus, and again A plus and the power sign. These all are your operators. Okay, you studied this, and there are some parentheses here for A and B. These are your parentheses. Okay, so evaluation of expression is our topic, like how computer evaluate the expressions. So these are some examples of the expressions as well. Now you studied in the mathematics, आपने mathematics में पढ़ा होगा the expression is always evaluated. This is a really important line, that's why I'm writing in a red. Evaluated from left to right. Okay, but not in a case. For example, if you are looking this, bear with me a second. Pencil, not here. This is a different case. For example, x is equal to y plus z. This is a different case. Like we said, we solve the right hand side first. We said we solve the right hand side first,
okay, and then left hand side, okay, left hand side. But if we are given, but here on the right hand side, we start from left, okay. So what is the value of y? Then we took the value of y, and then we took the value of z, and then we added them together. So on the right hand side we started from left, but this is something different. So anyhow, any expression is solved from the left hand side, and then we will put the values of variables in a left hand side, and then we try to solve the values from left to right, and then we assign the value to the left hand side. First we solve the right hand side of equation, and then we assign the value to the left hand side. But actually when we are starting or solving, we start from the left hand side of right hand side, okay. So that's why I write it. मैंने लिखा है कि जो आपकी एक्सप्रेशन है वो क्या होगी, वो लेफ्ट से सॉल्व होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी अभी मैं लिख रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये किसी बच्चे को नहीं आएगा उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। This is our page number 2 for today. It's okay if someone are joining or some people are joining late, no problem at all. We haven't studied complex level. This is very important thing. और जब भी आप सॉल्व करेंगे मेरे प्रॉब्लम्स को पेपर में आ जाए या मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, तो आपने याद रखना है कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। इस चीज को कभी नहीं भूलना है। लेवल ऑफ प्रेसिडेंस, PRESEDENCE, यानी कि आप इसको अगर शॉर्ट फॉर्म लिखें तो कौन सबकत ले जाएगा, इसका मतलब है सबकत ले जाना, सबकत ले जाना, ठीक हो गया। और ये प्रेसिडेंस निकला है प्रीसीडिंग से वर्ड निकला है, ठीक है, ये टर्म निकली है। चलें आगे आते हैं हम। अब इसको लेवल को चेक करते हैं, तो मैं इसके लेवल लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सॉल्व करेंगे, जब भी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट रूल तो ये हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, देयर आर 4 लेवल ऑफ प्रेसिडेंस, ओके। तो जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, जहां भी डेटा पैरेंथेसिस के अंदर नजर आएगा उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप पावर को सॉल्व करेंगे। अगर 2 फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 पावर 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड से जो पहली पावर आएगी वो सॉल्व करेंगे। फिर आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे एंड डिवाइड को सॉल्व करेंगे। इन दोनों की इक्वल प्रेसिडेंस है, ठीक है, इक्वल है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, प्लस और माइनस, ये साइन रह जाते हैं, प्लस एंड माइनस। तो प्लस एंड माइनस को आप 4th नंबर पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैंने आपको एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस हैं तो पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड पावर वाले जो 2 वेरिएबल्स हैं उनको आपस में सॉल्व करेंगे, थर्ड में आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आ जाएगा, और फोर्थ में आपके पास प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं, इस एग्जांपल को समझना है। और हमेशा क्या है, जो लेफ्ट से पहले, फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट में आपके पास एक ऐसी टर्म आ जाती है जिसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड भी है, लेकिन आपने क्योंकि लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेफ्ट में अगर मल्टीप्लाई पहले आया तो पहले वो सॉल्व होगा, फिर आपका डिवाइड सॉल्व होगा। अगर आप इन दोनों को इक्वल में उस टाइम पे सॉल्व कर लेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं, आपके पास एक एग्जांपल आ गई, सिंपल मैथ्स है, कोई इशू नहीं है। 2 पावर 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, एंड माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3। अब देखते हैं कि इनको हम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस के मुताबिक कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास तो ये पैरेंथेसिस फॉर एग्जांपल है ही नहीं,
पेरेंथेसिस के बाद पावर का नंबर आता है, तो हमने सबसे पहले पावर को सॉल्व कर दिया। हमारे पास क्या आ गया, 6 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 9/3। उसके बाद हम, ये फर्स्ट स्टेप आ गया आपका, यानी कि मैं इसको फर्स्ट के सेकंड पे मैं ये कहता हूं कि सेकंड पे मेरे पास आ जाएगा 6 प्लस 12। ओके, मैं इस तरह लिखूंगा, ठीक हो गया। माइनस, अब क्योंकि लेफ्ट से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, 6 इंटू 2 को सॉल्व कर दिया, जो 12 आ गया, माइनस 9/3। ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको पहले सॉल्व करूंगा, ये ना हो आप यहां से स्टार्ट करें। ये आपके पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। अभी हम थर्ड के ऊपर आते हैं, जी। और गुड न्यूज, 2 की पावर 3 8। यस, हैप्पी डेज। ओके, यहां पे आ गया। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 17 आ जाएगा। ठीक है, आपने पहले क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो ये 20 आ जाएगा, 20 फिर -3। ठीक हो गया। तो ये आपको मैंने लेवल ऑफ रेजिडेंस में एक सिंपल एग्जांपल बताई है, क्योंकि आगे जाके ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिनेरियो, जिसमें आपको सिर्फ वेरिएबल्स मिलेंगे और बीच में साइंस मिलेंगे। अब आते हैं आगे कि कैसे ये कॉम्प्लेक्स होगा। अक्सर एक ऑब्जेक्टिव टाइप आता है या मल्टीपल चॉइस आता है, उसमें ये कहता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, द सिंपल अरिथमेटिक a simple arithmetic is called infix। ये जो आपने जो ये एग्जांपल देखी है, या इससे पहले वाले पेज के ऊपर हमने ये कुछ एग्जांपल्स देखी हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ये देखिए, जिसमें ऑपरेटर क्या होता है, सेंटर में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनफिक्स कहते हैं। यानी कि ये आम कॉमन है, ये ऐसी एक्सप्रेशन है जिसको के ह्यूमन बीइंग समझते हैं, ठीक है क्या। तो इनफिक्स ऐसी एक्सप्रेशन है जिसको आप आसानी से समझते हैं। अब आते हैं, इनफिक्स है क्या, तो इनफिक्स की थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वैसे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। इनफिक्स एक्सप्रेशन है क्या, आपको बस सिर्फ इसका रट्टा नहीं बल्कि थोड़ा सा लॉजिक आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, आपके पास ऑपरेंड्स होते हैं, ऑपरेंड्स, सेंटर में फिर क्या आ जाता है, ऑपरेटर, और आखिर में क्या आ जाता है, फिर ऑपरेंड आ जाता है, या ऑपरेंड्स कह लेते हैं, ठीक हो गया। तो मैं कहता हूं ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। और इसकी एग्जांपल अगर मैं देखूं, इनफिक्स या सिंपल अरिथमेटिक की एग्जांपल अगर मैं देखूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, i.e. a प्लस b कामा a माइनस b कामा a डिवाइड बाय b, a पावर b कामा a मल्टीप्लाई बाय b। ओके, दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। या अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिखूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, a प्लस b मल्टीप्लाई बाय c प्लस माइनस d डिवाइडेड बाय 6। ओके, सॉरी, डिवाइडेड बाय 6 नो, डिवाइडेड बाय z। ओके, तो ये है आपके पास एग्जांपल है किसकी, इनफिक्स एक्सप्रेशन की। अब हम अपना पेज नंबर 2 के ऊपर आते हैं। इनफिक्स का मतलब क्या है, जिसने अभी लेक्चर ज्वाइन किया है कोई मसला नहीं है, उसके लिए इनफिक्स का मतलब ये है कि आपके पास जो ऑपरेटर है वो क्या होगा, मिडल ऑफ टू, इन बिटवीन टू ऑपरेंड्स होगा, ठीक हो गया, यानी कि सैंडविच बना होगा। पेज नंबर 3 के ऊपर आते हैं। अब पीछे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, और ये बिलीव मी और नॉट, इस हर मर्तबा में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देता हूं अपने बच्चों को, ठीक है। और इसमें आखिर में जब हमारा आज का इंशाल्लाह टॉपिक खत्म होगा, तो आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि कंप्यूटर कैसे आपकी एक्सप्रेशन के साथ डील करता है। आप तो सिर्फ इनफिक्स लिखते हो, वो इनफिक्स को कन्वर्ट कर देता है किसी और फॉर्म में सोल्यूशन के लिए। चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं कि पोलिश
नोटेशन क्या होती है, पोलिश, POLISH, पोलिश नोटेशन। इसको पोलिश भी कहते हैं और इसको कहते हैं मैं इसको, एक तो इनफिक्स आ गई आपके पास, इनफिक्स मैंने आपको बता दिया, ये जो है ये आपके पास इनफिक्स है, इसको नाम मैं दे देता हूं फॉर एग्जांपल ए, ठीक होगा, मैं ए ऐसे ही लिखूंगा। और ये बी है आपके पास, इसका नाम है पोलिश नोटेशन और प्रीफिक्स नोटेशन। प्रीफिक्स एक इनफिक्स होगी, इनफिक्स में आपके पास इन बिटवीन ऑपरेंड्स, ऑपरेटर्स इन बिटवीन ऑपरेंड्स, ओके। इनफिक्स नोटेशन TATION नोटेशन। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। Arithmetic operator is placed before two operands, okay। और ये जो इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो नेक्स्ट वाली मैं लिख रहा हूं ना, याद रखें, इसमें पैरेंथेसिस वगैरह नहीं होती, parentheses are not used in Polish, POLISH, Polish notation। नोटेशन का मतलब होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेशन जिस तरह हम लिखते थे, तो इस मतलब इन्होंने वर्ड को चेंज कर दिया, नोटेशन। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा, ठीक है, तो आपने उस टेबल को देखना है कि क्या होगा। टेबल का टाइटल है आपके पास इनफिक्स। अगर कोई भी आपको, ये बहुत अक्सर आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्कॉलरशिप्स के एग्जाम में, ठीक हो गया, कि यार कन्वर्ट कर दो। फॉर एग्जांपल आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं एमफिल के लिए, ठीक है, तो वहां पे अक्सर ये चीज आती है, ये क्वेश्चंस आपसे आते हैं, 1 2 3, अगर 4 क्वेश्चंस भी आ गए तो समझे आपके 4 मार्क्स होते हैं, ठीक हो गया। तो अब देखते हैं वन बाय वन एक्सप्रेशंस को कि हमारे पास कौन कौन सी एक्सप्रेशंस आती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाएगा, एक है x प्लस वाई, अगर ये सिंपल टर्म हो, क्या है x प्लस वाई, अगर ये एक सिंपल टर्म आपको गिवन हो x प्लस वाई, और कहे कि इसको पोलिश या के प्रीफिक्स, पोलिश और प्रीफिक्स में कन्वर्ट करो, तो आप इसको कोई मसला नहीं होना चाहिए, आपके लिए आसान है। क्या कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन इज प्लेस्ड बिफोर टू ऑपरेंड्स, यानी कि बिफोर टू ऑपरेंड्स आप प्लेस कर दो x y, ठीक हो गया, तो ये आपकी कन्वर्ट हो गई पोलिश के अंदर। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, इजी पीजी, उसमें क्या कहता है, x डिवाइडेड बाय y, अगर ये आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड पहले आ जाएगा, फिर आपका x आ जाएगा, फिर आपका y आ जाएगा। अगर तीसरी एग्जांपल को अब देखते हैं, थोड़ी सी जरा ये ट्रिकी होने वाली है लेकिन बहुत इजी है। अगर आपके पास यही हो x प्लस y एंड मल्टीप्लाई बाय z, अगर 3 वेरिएबल्स आ जाएं और उनके दरमियान ऑपरेटर आ जाए, तो सबसे पहला जो हमने रूल पढ़ा है उसके मुताबिक हमने सबसे पहला रूल क्या पढ़ा है, हमेशा याद रखें कि सबसे पहले लेवल ऑफ प्रेसिडेंस को देखेंगे। लेवल ऑफ प्रेसिडेंस क्या कहता है, आपको फर्स्ट लेवल के ऊपर आपका क्या है, ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स को आपने सॉल्व करना है सबसे पहले। तो ब्रैकेट्स को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x और y। सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, और x और y आपके क्या हो जाएंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर इज प्लेस्ड बिफोर द टू ऑपरेंड्स। दो ऑपरेंड्स कौन कौन से, x और y, और अर्थमेटिक ऑपरेटर को अगर इनसे मैं पहले लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका ये ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। अब आपने याद रखना है कि ये आपका पूरे का पूरा जब ये मल्टीप्लाई होगा तो एक वेरिएबल बन जाएगा, एक ही डेटा बन जाएगा। एक टर्म आपके पास ये रह जाएगी और दूसरी टर्म आपके पास क्या रह जाएगी, इसके साथ रह जाएगी मल्टीप्लाई बाय z। अभी तक हमने इसको सॉल्व नहीं किया, तो इसको और सॉल्व करेंगे। एक टर्म आपके पास ये x और y प्लस बन गई और दूसरी टर्म आपके पास z बन गई, यानी कि ये एक ऑपरेंड है, इसको मैं a कह देता हूं, ये दूसरा ऑपरेंड है, इसको मैं b कह देता हूं, और सेंटर में ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। इसको आगे और मैं सॉल्व करूंगा, इजी पीजी, कोई मसला नहीं है।
सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा, मैं अपना ए और बी लिख दूंगा। ए मेरे पास क्या है, प्लस एक्स वाई है, और बी मेरे पास क्या है, जेड है। तो मेरे दोनों ऑपरेंट लिखे गए और ऑपरेटर को ऑपरेंट से पहले लिख दो। ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। जिसको समझ नहीं आई, अगर वो मेरे से लेक्चर के बीच में पता कर सकता है। अब इसकी एग्जांपल नंबर 4 करते हैं, जो यहां पे कंफ्यूज हैं उनके लिए, कि एग्जांपल नंबर 4 जो देखेगा तो उसको ये समझ आ जाएगी अगर उससे कुछ मिसिंग हुआ है। तो मैं फोर्थ वन को इधर लिखता हूं, x plus y and then this time z is multiplied and there is a bracket here. ब्रैकेट किसके दरमियान है, y और z के दरमियान है, और इनके सेंटर में ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लाई का साइन आपका एक ऑपरेटर है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, नाउ वी आर गोना सॉल्व इट। क्या कहता है, सबसे पहले लेवल ऑफ प्रेसिडेंस के मुताबिक सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। और ब्रैकेट्स के अंदर क्या चीज है, मल्टीप्लाई का साइन है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, एक्स ऐसे ही रहेगा, एक्स को मैंने ऐसे ही रखा, प्लस को मैंने भी अभी ऐसे ही रखा क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा। लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया, ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि मेरे पास क्या आ गई, इसकी प्रेसिडेंस हाई आ गई। मैं आगे आया, आगे मैंने देखा कि ये मेरे पास दोनों क्या हैं, ये दोनों ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर को लगा दो। मैंने क्या किया, ऑपरेटर को लगा दिया, ऑपरेंड से पहले ये मल्टीप्लाई हो गया, और फिर y और फिर z। प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में क्या होता है, आपका जो ऑपरेटर है वो पहले आ जाता है, दो ऑपरेंड्स बाद में आते हैं। और उसके बाद मैंने सिर्फ अपनी आसानी के लिए लास्ट टाइम की तरह मैंने कह दिया कि मेरे पास ये जो है ये एक वेरिएबल है और ये दूसरा वेरिएबल, इसका नाम मैंने a रख लिया, इसके नाम मैंने b रख लिया। अब देखा जाए तो ये a है, ये पूरे का पूरा मल्टीप्लाई होके कोई b आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर y की वैल्यू 6 है और z की वैल्यू 2 है तो 6 into 2 क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये पूरे का पूरा मल्टीप्लाई होके इन दोनों की वैल्यू मुझे 12 दे देगा। 12 को मैं प्लस कर दूंगा इस x के साथ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब आगे देखते हैं, क्योंकि ये सॉल्व पूरा नहीं हुआ, इसका पूरा के पूरा सोल्यूशन क्या होगा उसकी तरफ हम आते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि अब ये a है ये b है, तो उसने कहा है कि सबसे पहले क्या कर दो, ऑपरेटर को लिख दो, क्योंकि प्रीफिक्स का मतलब है ऑपरेटर पहले होना चाहिए। तो इन दोनों के सेंटर में ऑपरेटर क्या है, माय अपॉलॉजी, ऑपरेटर प्लस है, तो प्लस पहले आ जाएगा। फिर फर्स्ट जो है वो क्या है, x है, और सेकेंड एलिमेंट क्या है, मल्टीप्लाई yz। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, आपने याद रखना है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास प्रीफिक्स जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम अपना दूसरी नोटेशन की तरफ आते हैं। अब सी पार्ट है, इनफिक्स हो गया या पोलिश नोटेशन या प्रीफिक्स हो गया। अब सी पार्ट में आते हैं। सी पार्ट में इसके बाद हम इसकी और एग्जांपल्स भी करेंगे, आपने घबराना नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको और एग्जांपल भी दे दूं या खुद कर दूं, करवा दूं, कोई मसला नहीं है। रिवर्स पोलिश नोटेशन, रिवर्स पोलिश नोटेशन। अब इसका नाम क्यों हमने ऐसा रखा ये भी मैं आपको बताता हूं। यह इसका दूसरा नाम क्या है, पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स भी इसका नाम है, जिस तरह इसका नाम था ना पोलिश था, इसका नाम, इसका ऑपोजिट नाम रिवर्स पोलिश। इसका नाम क्या है, ऊपर वाले का प्रीफिक्स, तो उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पोस्टफिक्स, या इसको हम क्या कहेंगे, सफिक्स। सफिक्स नोटेशन। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये सफिक्स नोटेशन भी इसको हम कहते हैं। इसके सफिक्स का ऑपोजिट क्या होता है, मेरे ध्यान से निकल गया है। अब यहां पे एक में एग्जांपल, सफिक्स क्या होता है। सफिक्स फॉर एग्जांपल आप जब लिखते होते हैं ना, फॉर एग्जांपल इट्स सेकंड ऑफ, नो टुडे इज 5th of December, isn't it? तो आप क्या लिखते हैं, 05th। जब ये ऊपर आता है तो ये क्या हो जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सफिक्स इसको हम बोलते हैं। ठीक है, 5th 12 2020। और जब ये इसको नीचे हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पे हमें ऐसा चाहिए होता है कि यार ये इससे थोड़ा छोटा लिखा आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह लिखता हूं कि एक्सप्रेशन को अगर मैं लिखता हूं तो ई कैप, मेरा ई बड़ा हो जाए और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएं। अब मैं इसको भूल गया हूं,
बल्कि मुश्किल नहीं है, मुझे वर्ड के ऊपर जाके देखना पड़ेगा। 10 मिनट के बाद हमारा ये मतलब सेशन एक्सपायर हो जाएगा, तो काइंडली आपको मैं नया पेज भेजूंगा, तो आपने उसको ज्वाइन करना है। तो हम अपने वापस बैक होते हैं जहां पे थे, रिवर्स पोलिश नोटेशन और पोस्टफिक्स नोटेशन और सफिक्स नोटेशन, तो ये उसके ऑपोजिट हो जाएगा। तो इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत इजी पीजी है। आपने अभी देखना है कि मैं क्या करने वाला हूं। तो कहता है कि इन दिस नोटेशन operator is always placed after the operand, after the operands, or you can say two operands, okay? और इसमें भी एक important point है कि parentheses are not allowed, parentheses aren't allowed, ओके? parentheses इसमें में नहीं लगती हैं, ठीक है? मैं स्टेटमेंट को चेंज कर देता हूं। अब हम आगे आते हैं अपना पेज नंबर 4 और इसके अब एग्जांपल देखेंगे। तो पोस्टफिक्स में क्या, प्रीफिक्स में क्या था, आपका जो जी नो प्रॉब्लम एट ऑल। पेरेंथेसिस का मतलब होता है ये जो आपकी जो ब्रैकेट्स होती हैं ना, स्मॉल ब्रैकेट्स इसको आप कहते हैं, ये आपकी पेरेंथेसिस कहलाती हैं। अब शायद आप लेट आए लेक्चर में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं आपको एक और चीज शेयर करता हूं आपके साथ। ये देखें, लेवल ऑफ प्रेसिडेंस। जब भी आप सोल्यूशन सॉल्व करेंगे किसी भी चीज को, तो आप सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? मैथ्स में पेरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, फिर पावर के साइन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम पावर को इस तरह लिखते हैं, वहां पे आप ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप लिखते हैं 2⁻³ ऐसे लिखा होता है, पावर का साइन नहीं होता। लेकिन कंप्यूटर में उसको समझ नहीं आती, आपको पावर का साइन बीच में डालना पड़ेगा, और कंप्यूटर की जुबान में अगर इसको मैं लिखूं तो ये 2⁻³ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है भैया? उसके बाद हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को सॉल्व करते हैं, लेकिन हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, फिर हम प्लस और माइनस को सॉल्व करते हैं। प्लस और माइनस इक्वल प्रेसिडेंस है, ठीक है? ये इक्वल है बिल्कुल। मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी कि एक ही लाइन में हम सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास टू टर्म्स आ रही हैं मल्टीप्लाई की, और एक टर्म आ रही है डिवाइड की, तो तीनों हम एक ही लाइन में के अंदर एक स्टेप में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? लेकिन हम स्टार्ट कहां से करेंगे? लेफ्ट पे जो भी पहला आएगा। अगर लेफ्ट में मल्टीप्लाई पहला आ रहा है तो पहले मल्टीप्लाई होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड से कोई इनको हम सॉल्व करते हैं हमेशा, तो लेफ्ट में अगर आपका डिवाइड आ रहा है तो पहले डिवाइड होगा। तो चलिए इसकी एग्जांपल जब मैं करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब हम पेज नंबर 4 के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि जिसको पहले जो समझ नहीं आया उसको तीसरा समझ आ जाए। पहला एक नहीं समझ आया, प्रीफिक्स, अगर उसको पोस्टफिक्स आ जाए तो वो प्रीफिक्स बना सकता है। तो दिस इज आवर पेज नंबर 4 फॉर टुडे, ओके। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, जिस तरह हमने वहां पे एग्जांपल देखी थी तो इसकी भी एग्जांपल करते हैं। की एग्जाम्पल करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? मैं इसको कहता हूं सीरियल नंबर, ओके। एंड देन हमारे पास इनफिक्स आ जाएगा, इनफिक्स। एंड आफ्टरवर्ड हमारे पास आ जाएगा प्रीफिक्स भी। अब देखते हैं, और साथ में पोस्टफिक्स जो आज का टॉपिक है, पोस्टफिक्स। और इसका दूसरा नाम क्या है? रिवर्स पोलिश। अब मैं इसके नाम का रीजन भी आपको बताऊंगा कि इसका नाम पोलिश क्यों पड़ा है। ओके, सीरीज नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास a+b। अब कोई भी बच्चा मुझे ये बता सकता है आप में से कि इसका क्या होगा, ठीक है? ये पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन बच्चे इसको अक्सर इग्नोर करते हैं। तो प्रीफिक्स का मतलब है ऑपरेटर को पहले लगा दो। ऑपरेटर क्या है? प्लस, पहले लिख दिया, उसके बाद ऑपरेंड्स कौन से? ए बी को लिख दिया। अब इसी का पोस्टफिक्स देखते हैं। पोस्टफिक्स क्या कहता है कि पहले ऑपरेंड्स होंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पहले ऑपरेंड्स लगा दिया। ऑपरेंड्स क्या है? ए एंड बी, और फिर ऑपरेटर क्या है? प्लस, प्लस आखिर में आ जाएगा। अब इसकी और एग्जांपल करते हैं, सेकंड में आ जाते हैं।
सेकंड पे आपको कहता है कि a मल्टीप्लाई बाय b। ओके, अगर इसकी मैं प्रीफिक्स देखता हूं या पोलिश देखता हूं, प्रीफिक्स और पोलिश, तो क्या हो जाएगी, ऑपरेटर पहले आ जाएगा, मल्टीप्लाई a, फिर ऑपरेंड्स दोनों आ जाएंगे। अगर मैं पोस्टफिक्स देखता हूं तो पहले ऑपरेंड्स आ जाएंगे, दोनों ऑपरेंड्स, और फिर ऑपरेटर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं थर्ड एग्जांपल को अपना देखता हूं कि मेरी थर्ड एग्जांपल क्या कहती है मुझे। a डिवाइडेड बाय b, नो प्रॉब्लम। अब प्रीफिक्स ऑपरेटर पहले, फिर ए बी, अब ऑपरेंड्स पहले, दोनों ऑपरेंड्स पहले हो जाएंगे और डिवाइड बाद में आ जाएगा। ठीक है, मैंने बेबी स्टेप्स भी आपको बता दिए हैं, अब आपको मसला नहीं होना चाहिए। फोर्थ में आते हैं, हमारी जो फोर्थ एग्जांपल है उसमें हम आगे a माइनस बी के ऊपर। ठीक हो गया। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले प्रीफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर पहले होता है, माइनस पहले आएगा, ए बी बाद में आएगा, और यहाँ पे ए बी पहले आ जाएगा और माइनस बाद में आपका आएगा। ठीक है, ऑपरेंड्स एंड देन ऑपरेटर। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं, मैं अपने से लिखता हूं फिफ्थ वन को, अब ब्लैक पेन से ही लिख देते हैं। फिफ्थ एग्जांपल है, अगर मेरे पास आ जाता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, इस मतलब मैंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं लेवल ऑफ प्रेसिडेंस आपको समझाना चाहता हूं। हमने लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, आपके पास ए आया, बी आया, बी सॉरी ए के बाद आपके पास प्लस आया, प्लस की जो है लेवल कम है, लेवल ऑफ प्रेसिडेंस कम है, लो है, तो हम क्या करेंगे, बी के ऊपर आएंगे और इनके मिडिल में देखेंगे क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का लेवल ऑफ प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दो ऑपरेंड्स के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। यानी कि आपके पास अगर मैं इसका प्रीफिक्स देखूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए इसी तरह रहेगा, प्लस का साइन इसी तरह रहेगा, क्योंकि मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया और मुझे क्या हुआ पता चला कि यहां से बी और सी के सेंटर में हायर प्रायोरिटी वाला है, तो हमने क्या किया, क्योंकि प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स में हम क्या कहते हैं, मैं इसको सिर्फ ब्रैकेट्स में आपके लिए लिख देता हूं, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई और बी सी। ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, क्यों, अभी तक सिर्फ इसका ये पोर्शन सॉल्व हुआ है, ये रहता है। अब ये पूरे का पूरा आपके पास, ये पूरे का पूरा, ये आपके पास एक ऑपरेंड है, ये दूसरा ऑपरेंड है। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, आपने क्या कहा है कि सबसे पहले ऑपरेटर को लिखो, ऑपरेटर ए आ गया, उसके बाद ऑपरेंड्स को लिखो, ऑपरेंड्स आपके पास ए मल्टीप्लाई बाय बी सी, ये आपके पास ऑपरेंड है। अब इसका मैं पोस्टफिक्स देखता हूं, पोस्टफिक्स में क्या होगा, पोस्टफिक्स में भी कहां से हम स्टार्ट लेफ्ट से करेंगे और हम देखेंगे इसको, इस मेथड को इंस्पेक्शन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड, ये जो मैंने लिखा है इसका नाम है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब देख के चीज को सॉल्व करना, इंस्पेक्शन मेथड। और यहां पे आ जाएगा आपके पास, यहां पे आए प्लस और यहां पे हमें मल्टीप्लाई नजर आ गया, इसका मतलब सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला साइन होगा। तो इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे, ए प्लस आपके पास इस केस में अभी तक ऐसे ही रहेगा, और फिर बी सी मल्टीप्लाई, क्योंकि पोस्टफिक्स में क्या होता है कि आपके पास पहले दो ऑपरेंड्स आते हैं और फिर ऑपरेटर आता है। ठीक है, तो अब आपके पास एक टर्म ये बन गई है, एक टर्म ये बन गई है, एक ये ऑपरेंड है, एक ये ऑपरेंड है, तो इसको आप लिख लेंगे ऑपरेंड एंड देन अगेन ऑपरेंड्स एंड देन ऑपरेटर, ऑपरेटर प्लस का साइन यहां पे आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आपके पास एक आंसर आपके पास ये आता है और एक आंसर आपके पास ये आता है। ठीक है, इस इक्वेशन का किसको मसला हो वो पूछ सकता है अभी, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स सॉल्व करूंगा। किसको मसला है, प्रीफिक्स में नहीं, देखें अगर देखा जाए, ये याद रखें ए से पहले नहीं आ सकता है। क्यों, आप जब लिखेंगे तो क्या लिखा आपने, ए प्लस, आगे क्या है, ए प्लस ऐसे ही रहेगा, बी और सी के सेंटर में है तो बी और सी सॉल्व हो जाएगा। अब ये उसी तरह समझ लें कि ये है 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ये पूरा इस फॉर्म में लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो जब भी हम सॉल्व करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर क्या होता है 12,
तो यानी कि ये समझें कि ये जो मैंने लिख दिया है